I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, in today's session we are going to learn the another story which is about APJ Abdul Kalam sir का My Journey जो उनका ऑटोबायोग्राफी है. So इसमें का एक स्टोरी हम आज लर्न करेंगे that is My Father's Morning Walk. Let's learn this English story with story reading with Hindi meanings. So learn English with story reading and find out the meaning in Hindi. So ये जो सेशन है इसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ and do like, share, subscribe our channel. So let's learn this one beautiful story My Father's Morning Walk जो कि सर ने लिखी हुई है उनकी किताब में. For as far back as I can remember, जैसे कि मुझे याद है, My father Jainuladin's day began at 4 a.m. हमारे पिताजी सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे. He would be wake up before anyone else in the household. घर में किसी के उठ जाने से पहले ही वो उठते थे. After saying his prayers in the breaking light of the day, सूरज के उगने से पहले उनकी जो प्रार्थना है वो भी हो जाती थी. He would go on a long walk to visit his coconut grove. और वो फिर दूर चले जाते थे वॉक के लिए. कहाँ पे? कोकोनट ग्रो यानी कि जहाँ पे नारियल के पेड़ का बगीचा रहता था वहाँ पे. We lived in Rameswaram, a small temple town on an island in Tamil Nadu. ये जहाँ पे रहते थे वो जगह का नाम था रामेश्वरम जो आता है तमिलनाडु में. This being on the east coast of India, भारत का जो ईस्ट कोस्ट है यहाँ पे ये जगह है. Dawn would break early यानी कि सुबह जल्दी हो जाती थी. And our death saddle followed the rhythm of the rising and setting of the sun and the sea waves. और सुबह का जो एक आनंदमय वातावरण रहता था यानी कि उगता हुआ सूरज देखना, समुंदर की जो लहरें थी उन्हें देखना, उनकी आवाज सुनना, इस तरह का एक नज़ारा वहाँ पे उन्हें देखने को मिलता था. The sound of the sea was a constant presence in our lives. समुंदर की जो लहरें हैं उनकी आवाज हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी. Storms and cyclones यानी कि जो तूफान आते थे समुंदर में. Blew by with regularity during the tumultuous monsoon months. Tumultuous monsoon months यानी कि जो मानसून का मंथ रहता था यानी कि जो बारिश का जो मौसम रहता था तब ये घटनाएं वहाँ पे होती रहती थी. We lived in our ancestral home. Ancestral home यानी कि पुरखों का जो एक घर होता है, सालों पीढ़ी दर पीढ़ी से चला हुआ यानी कि बहुत ही पुराने ज़माने का घर हम उसे बोलते हैं. We lived in our ancestral home यानी कि हम हमारे पीढ़ीजात घर में रहते थे. A fairly large made of limestone and brick. limestone और brick से बना हुआ ये उनका घर था. Built some the 19th century और ये घर बना था 19th century में. It was never luxurious. ये उतना luxurious यानी आलीशान नहीं था. But was filled with love. लेकिन इस घर में क्या था? प्यार था. My father had a boat building business. इनके पिताजी का बिजनेस था बोट बिल्डिंग का. Additionally, we also own a small coconut grove some 4 miles away from our house. उनके घर से 4 माइल्स दूर उनके पास एक कोकोनट का बगीचा था. That was where my father would be headed for in the early morning hours. जहाँ पे अब्दुल कलाम जी के पिताजी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. His walking circuit was well established and he rarely deviated from it. उनकी वो एक आदत बन चुकी थी कि सुबह उठकर बगीचे में जाके वो चले आते थे वापस. First he would step out into Moscow Street where our house was located. It was a small, predominantly Muslim locality not too far from the Shiva temple that has made our town famous for centuries. सालों से चली आ रही जो शिवा का टेम्पल है उनके नाम से जो प्रसिद्ध वो उनका गांव है वहाँ पे मॉस्को स्ट्रीट यानी कि जहाँ पे क्या होता है मुस्लिम लोगों का जो प्रार्थना स्थल रहता है जिन्हें हम मस्जिद बोलते हैं तो वो वहाँ पे लोकेटेड था उनके घर के वहाँ पे. He would then walk through the narrow lanes of the town onto the more open roads leading to the present groves, and finally went his way through the groves to his patch of land.
और इस तरह से उनके पिताजी सुबह दूर के सैर करके आते थे. टुडे आई ट्राई टू इमेजिन हिम वॉकिंग ऑन दोज क्वाइट रोड्स. आज मुझे उनकी याद आ रही है. मैं उन्हें इमेजिन कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे चल रहे हैं. Long before the day made its many demands on him. Ours was a large family, and I am sure there were many pressures on him to see to our needs. यानी कि जिस तरह से इनके परिवार में बहुत सारे लोग थे, तो उनके पिताजी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी. But at that hour, I think of him listening intently to the sea, to the ever present ravens and other birds that swooped and flew all round. Woken up by the rising sun like him, perhaps he said his prayers to himself as he walked, or thought of his family with a calm, uncultured, early morning mind. सुबह की जो एक पंछियों की किलकिलाहट होती थी, तो वो सब हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं उन्हें वो याद आ रही है कि वो महसूस कर रहे हैं उनके पिताजी का वो दिनचर्या यानी शेड्यूल कैसा होता था, डेली रूटीन कैसा होता था. And he explained these things over here. I never did ask him what went through his mind on this long daily walk, for when does a young boy have the time to reflect in this way about his father? But I was always sure that the morning walk added something to his personality, an element of calm that was apparent even to strangers. अब्दुल कलाम जी ये सोचते थे कि मुझे नहीं पता कि ये मॉर्निंग वॉक का जो उनका डेली रूटीन था कि इससे उन्हें क्या महसूस होता था. लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि ये उनके डेली रूटीन में यानी कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था. माई फादर वॉज नॉट अ पर्सन विथ मच फॉर्मल एजुकेशन. उनके पिताजी का इतना ज़्यादा एजुकेशन नहीं हुआ था. निदर डिड ही एवर एक्वायर मच वेल्थ इन हिज लॉन्ग लाइफ टाइम. वेल्थ यानी कि संपत्ति, पैसा, ना ही वो उतने पैसे वाले थे. एट फिर भी ही वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट ट्रूली जनरस मैन आई हैव हैड द फॉर्चून ऑफ नोइंग. लेकिन पैसा न होने की वजह, पैसा नहीं था, लेकिन वो एक इस तरह के इंसान थे कि जो अपने आप में ही बहुत अमीर थे. अवर मॉस्क्यू, और ये हमारे जो अब्दुल कलाम जी हैं वो बोल रहे कि ये मेरा नसीब था कि मेरे भाग्य की एक अच्छी बात थी कि मैं मेरे इतने महान पिताजी से मेरे पिताजी इतने महान थे. यानी कि उनकी नज़रों में हिज फादर वॉज अ वाइजेस्ट एंड ट्रूली जनरस मैन. अवर मॉस्क्यू वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ द लोकेलिटी. यानी कि वहाँ पे जो एक मस्जिद थी तो वो फोकल पॉइंट पे थी, यानी कि उस जगह पे उस रोड पर एक जगह पे थी. एंड माई फादर वॉज द मैन एवरीवन टर्न टू इन देयर आवर ऑफ नीड. द बिलीव दैट ही वॉज ट्रूली कनेक्टेड टू गॉड. सभी को ऐसा लगता था कि इनके पिताजी भगवान से बहुत ही कनेक्टेड हैं, बहुत ही जुड़े हुए हैं. आई रिमेंबर गोइंग टू द मॉस्क्यू टू से माई प्रेयर्स विथ हिम. इन्हें आज भी याद आता है कि वे मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद में जाते थे अपने पिताजी के साथ वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए या फिर नमाज पढ़ने के लिए. He made sure we never missed any of our proud, neither did it enter our minds to shirk this duty. After saying our namaz, when we would step out onto the road, groups of people would inevitably be there waiting to talk to him and share their worries with him. जैसे ही ये अब्दुल कलाम जी और उनके पिताजी मस्जिद से बाहर निकलते थे नमाज पढ़ने के बाद, वो वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे लोग उनके पिताजी से बात करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए खड़े हुए वो देखते थे. What did this man and woman see in him? मुझे नहीं पता था कि उन्हें मेरे पिताजी में ऐसा क्या दिखता था. He was not a preacher nor a teacher. ना कि वे बहुत बड़े हम ऐसे बोलते हैं ना कि किसी धर्म गुरु थे या फिर ना ही वो इतने बड़े टीचर थे. He was just a man who lived by his convictions and the tenets of his religion. वो सिर्फ एक आम इंसान थे जिनकी श्रद्धा थी, जो एक अच्छे इंसान थे, जो अपने रिलीजन के लिए बहुत ही कन्विक्टेड थे. What did he give them? इन सब चीज़ों से उन्हें क्या मिला? I now think that it was his mere presence that
calm them and gave them hope. आज मुझे पता चल रहा है कि मेरे पिताजी का वहाँ पे होना ही वो सभी लोगों को एक पॉजिटिव एनर्जी देता था. He said prayers for them and many people would offer him bowls of water. वो उनके लिए नमाज पढ़ते थे और इसके बदले में उन्हें पानी मिलता था. He would dip his fingertips in them and say a prayer. उस पानी में उंगली डाल के वो नमाज पढ़ते थे. After which the water would be taken away to the sick. यानी कि फिर वही पानी ले जाके जो कोई बीमार होता था, sick यानी कि बीमार, जिनको कुछ बीमारी है उन्हें वो पानी दिया जाता था. Later उसके बाद many of these people would come to the house and thank him for having cured their near and dear ones. Cure करना यानी कि ठीक करना. तो उसके बाद लोग उनके पास आते थे कि उनके लोगों को ठीक करने के लिए धन्यवाद वे कहते थे. Why did he do this? वो ऐसा क्यों करते थे? And where did he get the peacefulness and generosity of heart to talk to people? ये इतना जो एक शांत स्वभाव है, दिल का बड़प्पन है, ये कहाँ से आता था? Comfort them and pray for them in the midst of the busyness of his own life. खुद की जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स हैं, खुद की जिंदगी में इतने लोगों का एक उनके ऊपर प्रेशर है, फिर भी वे लोगों के लिए टाइम निकाल के उनके लिए वो प्रे करते थे. He was a humble boat owner. यानी कि उनके पास खुद की एक बोट थी. हम्बल यानी कि बहुत ही शांत स्वभाव का पर्सन और अपने ईमानदार, हम इसे बोलेंगे ईमानदार. ही वॉज अ हम्बल बोट ओनर. लाइफ वॉज सर्टनली नॉट ईजी फॉर हिम. जिंदगी उनके लिए इतनी ईजी नहीं थी. What with finding the best ways to make ends meet in a tiny temple town cut off from the mainland. उनका जहाँ पे वे रहते थे वो एक ऐसी जगह थी कि जो मेन जो पार्ट था उससे कहीं दूर वे रहते थे. Yet never once did I see my father turn away anyone who wanted to unburden himself by talking to him. Next. Without doubt यानी कि कोई भी शक ना दिल में रखते हुए, he was a deeply spiritual man. The kind connection with God. वो उनकी श्रद्धा थी, उनका भाव था अपने भगवान के ऊपर. I believe his spirituality came from being a learned man. और वही उन्होंने आध्यात्मिकता, इसे हम कहते हैं कि भगवान से जुड़ा रहना, जो कुछ है उनके पिताजी ने वो सीखा था. He knew the scriptures and could bring out their essential truth to even the youngest inquiring mind. When I asked him questions, जैसे ही अपने पिताजी को questions पूछते थे, he would always reply and attempt to explain in simple, straightforward Tamil. यानी कि उनके पिताजी तमिल भाषा में बात किया करते थे. Straightforward यानी कि सिंपल तमिल भाषा. Once I asked him, एक दिन अब्दुल कलाम जी ने उनको पूछा, Why do these people come to you? ये लोग आपके पास क्यों आते हैं? And what do you really do for them? और आप इनके लिए करते क्या हैं? His reply still stays with me. उनका वो दिया हुआ जवाब अभी भी मेरे ध्यान में है. Nearly 5 decades later, whenever human beings find themselves alone, जब भी कोई व्यक्ति खुद को अकेला पाता है, as a natural reaction, they start looking for company. तो वो क्या करता है? किसी का तो साथ उसको चाहिए, कोई तो उनसे बात करे, इसके लिए स्वाभाविक है वो इंसान ट्राई करने लगता है. Whenever they are in trouble, जब भी वे मुसीबत में होते हैं, they look for someone to help them. So कोई भी इंसान जब मुसीबत में हो, कोई भी इंसान जब टेंशन में हो, तो वो क्या ढूंढता है? द पर्सन, कि कोई तो उनको समझ ले, कोई तो उनसे बात करे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे. Every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. For the people who come to me in distress, I am but a go-between in their effort to ward off demonic forces with prayers and offerings. जब भी कोई इंसान परेशानी में मेरे पास आता था, तो मैं प्रार्थना से, प्रेयर से और भगवान की जो एक नमाज पढ़कर या फिर भगवान का शुक्र अदा कर उनको एक तसल्ली महसूस करवाता था. ऐसा जवाब
अब्दुल कलाम जी के फादर ने उनको दिया. Then he went on to tell me something about prayers and its power over man that still resonates. Despite my years in the field of scientific research, he said to look for help outside is never the final answer. One must understand the difference between a fear ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. उनके पिताजी ने उन्हें जो प्रेयर है, जो नमाज है, वो सब सिखाया. लेकिन उन्होंने कहा कि इतने सालों तक साइंटिफिक रिसर्च यानी कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, फिर भी ही सेड टू लुक फॉर हेल्प आउटसाइड इज नेवर द फाइनल आंसर. बाहर से मदद लेना यही सब कुछ नहीं है. वन मस्ट अंडरस्टैंड कि किसी को तो समझना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन यानी कि डर से घबराया हुआ जो दृष्टिकोण है ऑफ डेस्टिनी कि भविष्य में जाके हमारे साथ क्या होने वाला है, एंड द विजन यानी कि जो एक दृष्टिकोण रहता है दैट एनेबल्स अस टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट विद इन आवरसेल्व्स. डर की वजह से ही इंसान घबरा कर ही क्या करता है, अपने अंदर ही अंदर वो क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न खुद को पूछने लगता है और टेंशन में आ जाता है. When troubles come, जब भी मुसीबत आती है, try to understand the relevance of your sufferings. समझने की कोशिश करो कि ये मुसीबत आई क्यों है. Adversity always presents opportunity for introspection. His advice meant that in the many setbacks and defeats that destiny has handled me, I have always been able to look within for strength. यानी कि यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि जब जब भी मेरे सामने मुसीबतें आई, जब जब भी मुझे कुछ ऐसा लगा, तो मैंने मेरी खुद की मन की आवाज़ सुनी, खुद की स्ट्रेंथ पहचानी, उस पे मैंने काम किया. आई ट्रैवल फार, मैंने बहुत ट्रैवल किया. Far away from life in Rameswaram. My journey took me to places I had never imagined visiting, from the cockpit of a fighter jet to the highest office in the nation. यानी कि यहाँ पे अब्दुल कलाम जी अपना जीवन का जो एक जर्नी है, उनका लाइफ जर्नी, वो बयां कर रहे हैं कि it was always his words that came back to me. There is a divine power that looks over us, that gently lifts us from our sadness and failures and miseries. If we open our minds and let it, it will guide us to our true place. उनके पिताजी उन्हें हमेशा कहते थे कि एक भगवान की जो एक शक्ति है, एक जो पावर है, उससे हम दुख से, जो हमारे जीवन की समस्याएं हैं, जो असफलता है, उनसे बाहर निकल सकते हैं. सो ये उन्हें उनके पिताजी की बातें याद आ रही है. रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द बाइंडिंग्स दैट लिमिट यू, यानी कि जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि कोई तो आपको किसी चीज में बांध कर रख रहा है, तो वहां से बाहर आ जाओ. एंड लेट दैट पावर ओवरटेक योर माइंड, और अपने दिमाग का, अपने मन से सोचो. एंड दैट्स व्हाट विल बी ऑन द रोड टू ट्रू हैप्पीनेस एंड पीस. और यही एक रास्ता है, जब आप खुद के मन की सुनते हो, खुद के दिल की सुनते हो, तो वहां पे ही आपको खुशी मिलती है और पीस ऑफ माइंड मिलता है. This is what I imagine him saying to me whenever I am worried. जब भी अब्दुल कलाम जी चिंता में होते थे, यही बातें उनके पिताजी की उनको याद आती थी. I am now 82 years of age. ये किताब लिखते वक्त मेरी उम्र अभी 82 years का मैं हूँ. Like him, my day even today begins with a walk. मैं मेरे पिताजी की तरह सुबह उठकर वॉक के लिए चला जाता हूँ. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, आई सेवर द साइट ऑफ द न्यू सन. सूरज की एक नई रोशनी में देखता हूँ. द बैनिंग लाइट इन द स्काई बिफोर द सन अपीयर्स, द कूल ब्रीज एंड द स्वीट कॉल ऑफ द बर्ड्स. सुबह पंछियों की जो आवाज़ आती है, जो ठंडी हवा चलती है, ये सारी चीज़ें मैं आज भी महसूस करता हूँ. आई अंडरस्टैंड हाउ द शॉर्ट टाइम ऑफ द डे
binds us to nature. सुबह का जो समय है वो जल्दी निकल जाता है, लेकिन वो नेचर से हमें बांध कर रखता है. Each morning is different in the way the elements come together for that day. हर एक सुबह अलग होती है. It is a little drama nature puts up only for us, and I can't stop marveling at it. और सुबह की ये जो एक अच्छी छवि मुझे दिखाई देती है, नेचर का एक साइट मुझे दिखाई देता है, तो इसे देखने से मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ. ये हमारे अब्दुल कलाम जी यहाँ पे कह रहे हैं. Unlike him, I often find myself in a different town in the morning because of my travels, but the early morning peace and calm is the same everywhere. मैं यहाँ पे अब्दुल कलाम जी ये बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत जगह पे ट्रैवल किया, डिफरेंट जगह पे मैं चला गया, लेकिन मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन था वो मैंने कभी चेंज नहीं किया. Wherever I am, मैं कहीं भी रहूँ, I can find a tree that is great with age. जो बरसों पुराना कोई भी अगर एक पेड़ है तो मैं वो ढूंढता था. वेयर बर्ड्स ड्वेल, जहाँ पे पंछियों की जो किलकिलाहट है वो सुनाई देती थी. एंड गो बिजली अबाउट देयर डे विद द न्यू डॉन, और जहाँ पे एक नई सुबह की शुरुआत मैं देखता था. हुज लीव्स वेव जेंटली टू मी इन द मॉर्निंग ब्रीज, और उस पेड़ की जो पत्तियां हैं उनकी जो पत्तियों की जो आवाज़ है उससे चलने वाली जो हवा है, ब्रीज यानी हवा का झोंका, वो मैं महसूस करता था. इट मे बी अ वार्म डे और अ बिटरली कोल्ड मिस्टी मॉर्निंग when my breath fogs the air in front of me, but this time away from the cares and worries that the rest of the day will invariably bring means so much to me. सुबह का ये समय मुझे मेरी सारे टेंशन, सारे प्रॉब्लम से थोड़े समय के लिए तो सही, लेकिन एक दूर कर देता था. मैं उन नेचर की वो चीज़ों में खो जाता था. At my home in Delhi there is a grand old Arjuna tree. जहाँ पे हमारे सर रहते थे दिल्ली में, तो वहाँ पे उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा ही अर्जुन का पेड़ था. Somehow my feet always pull me towards it when I walk in my garden. It is usually laden with honeycombs and is home to hundreds of birds, especially parrots. यानी कि उनके घर के सामने जो पेड़ था तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ आती थी, उनके छत्ते रहते थे. हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता. उसके बाद बहुत सारे पंछी वहाँ पे आते थे, स्पेशली पैरट्स, यानी कि वहाँ पे उनको तोते ज़्यादा दिखते थे. द डिग्निटी, ब्यूटी एंड स्टैचर ऑफ दिस ट्री ब्रिंग्स मेमोरीज ऑफ माई फादर टू माइंड, एंड आई इवन हैव साइलेंट कॉन्वर्सेशन विद इट. और यही सारी चीज़ें मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती थी, और मन ही मन में जैसे कि मैं मेरे पिताजी से बात किया करता था. वंस, एक बार, आई रोट दिस पोएम where I imagine what the tree would say to me if only it could, कि ये पेड़ मुझसे क्या कहना चाहता है. ये कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ पे लिखी है. Some lines they have written. Oh my friend Kalam, I crossed age 100. Like your father and mother, every day morning you walk an hour. I also see you on full moon nights, walking with a thinking mood. I know my friend the thoughts in your mind. What can I give? यानी कि जैसे कि पेड़ उनसे बात कर रहा है कि सालों से मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ, जैसे कि तुम्हारे माता पिता उन्हीं की तरह, और तुम्हारा जो दिन, तुम्हारी दिन की जो शुरुआत है, मैं देखता हूँ तुम्हारे पिताजी की तरह ही तुम करते हो. सो यहाँ पे मैं हूँ खड़ा, मुझे बताओ मेरे दोस्त कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ. व्हाट कैन आई गिव, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ. As I walk wherever my life has led me, I often think of my father, Abdin, in my mind's eyes. I can see a man who, when he was a great age, continued to walk every morning to his coconut grove. उन्हें हर बार उनके पिताजी की याद आया करती थी. As I see him, I imagine how it's been almost an hour since he set off, and the caretaker of the grove is also up and going about his day when my father walks into his plantation. उनके पिताजी को पेड़ पौधे लगाना, सैर करना, ये चीज़ें बहुत पसंद थी. द मेन हेल each other with warmth. Perhaps Januluddin sits down somewhere a while. The other man climbs a coconut tree. He chooses half a dozen coconuts and cuts them down with a swing of his knife. यानी कि उनके पिताजी वहाँ बैठा करते थे, और जैसे कि
कोकोनट्स निकालने के लिए कोई वहाँ पे पर्सन रहता था, वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बहुत सारे यानी कि 10-12 डज़न जो है डज़न कोकोनट यानी 10 to 12 क्वांटिटी जो हम बोलते हैं वो निकाल के उन्हें देते थे। दे फॉल विथ अ थंब टू द ग्राउंड, ऊपर से फेंकने के बाद वो नीचे जमीन पर जो कोकोनट गिरते थे। द मैन क्विकली मेक्स हिज वे डाउन, देन ही प्रोसीड्स टू टाई देम अप टुगेदर इनटू अ नीट बंडल। तुरंत ही जो वो पेड़ पर चढ़कर कोकोनट काट रहा है वो नीचे उतरकर सभी को एक साथ बंडल बांध देता था। नाउ द टू men sit companionably for a while। अभी ये दो इंसान यानी कि उनके पिताजी और वो नारियल कट करने वाला इंसान वो साथ में बैठा करते थे। दे डिस्कस द स्टेट ऑफ द ट्रीज, वो पेड़ की बातें किया करते थे। दे peer up and says talk about rains and pests and other matters of the soil, यानी कि वो बातें किया करते थे बारिश के बारे में, कौन सा पेस्ट वहाँ पे मिट्टी में डाला जाए जो पेड़ पौधों के लिए अच्छा हो। फाइनली जैनुलाब्दीन पिक्स अप हिज बंडल ऑफ कोकोनट, बाद में उनके पिताजी वो सभी कोकोनट हाथ में लेकर सेज गुड बाय एंड बिगिंस हिज वॉक बैक टू होम, वो हाथ में लेकर घर वापस आते थे। ही विल गिव अवे अ फ्यू कोकोनट टू नेबर्स एंड अदर्स, उसमें से कुछ कोकोनट नारियल वो अपने अड़ोस पड़ोस में दिया करते थे। द रेस्ट विल फाइंड देयर वे इनटू करीज एंड चटनीज प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, और बाकी के जो नारियल है उनकी जो माताजी थी जो चटनीज और करीज बनाती थी उसमें उसे यूज किया करती थी। आई स्टिल रिमेम्बर सिटिंग डाउन टू दोज सिंपल मील्स एंड एंजॉइंग इमेंसली द स्मूथ क्रीमी कोकोनट चटनी माय मदर प्लेस्ड ऑन द लीफ प्लेट। जो पत्ते के ऊपर खाना उनकी माँ परोसती थी उसकी जो एक महक है, वो एक जो टेस्ट है उनके अभी भी वो ध्यान में है। इट इज़ अ टेस्ट दैट हैज़ लिंगर्ड इन माई माउथ इवन ईयर्स लेटर, साल गुजर चुके हैं लेकिन वो जो एक माँ के हाथ की जो टेस्ट है वो अभी तक मेरे मुंह में वैसी ही है। मेड स्वीटर स्टिल नोइंग दैट इट कंटेन द लव ऑफ माई पेरेंट्स एंड देयर ऑनेस्ट हार्ड वर्क, मेरे माता पिता का प्यार मेरे साथ है। सो दिस इज द वेरी वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमने पढ़ी है एपीजे अब्दुल कलाम सर की माई जर्नी, जो उनकी बुक है उसमें इन्होंने एक चैप्टर लिखा है अपने पिताजी के बारे में। सो ही हैज मेंशन्ड हिज फादर्स पर्सनालिटी कैरेक्टर ओवर देयर। सो ये स्टोरी आज हमने पढ़ी। लेट मी नो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।